Dear students, in this video lecture, we have discussed the rules of nomenclature. In the previous class, we can discuss what is nomenclature, what are the binomial nomenclature, what is the trinomial nomenclature. In this lecture, we have discussed about the what are the rules of nomenclature. Let's start the rules of nomenclature. The International Commission on Zoological Nomenclature was established by International Congress of Zoologists in 1898 1898 ମସିହାରେ in the year of 1898 the International Commission. What do you mean by international? That means to all the countries can make a international. ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ country ଅଛି like India, Pakistan, Sri Lanka, America, Bhutan, all the countries have a union that is called international. Means all over the head, that is the combination of all the countries. The International Commission on Zoological Nomenclature. So this is mainly based on zoological nomenclature. What is zoology? It is the study of different type of animals. So ये कौन कहला the International Commission. ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଶନ ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ମେମ୍ବର୍ସ ହେଲା नै the International Commission on Zoological Nomenclature was established. କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାନେ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? In the established କିଏ establish କରିଥିଲେ? By International Congress of Zoologists. What do you mean by zoologist? The scientist or the researchers or the analyst who can research about or who can study about or who can analysis about the different animals. Okay, they are called as zoologists. So in the year of 1898 तो कौन कहला पिले 1898 मसियारे in the year of 1898 the International Congress of Zoologists किछि मेंबर्स माननकु नै कि सेमाने कोन कले गुडे कमिशन गुडे तयारी कले जार ना कोन दिया हला International Commission on Zoological Nomenclature, and that commission or that committee will accept their or they can mention their some criteria how we can naming to a particular organism. Okay, तो एटा केबे स्टार्ट हितला 1898 मसिया स्टार्ट हला कमन स्टार्ट कले ऑल ओवर द internationally accepted or internationally chosen good or representative of different countries can make a one commission. They can give one criteria how the nomenclature or the naming system of the different organisms, because we have discussed in our previous classes that approximately 1.5 to 1.7 millions, that means 50 lakhs to 70 lakhs of animals are there in our world. So it is not possible, एटा गुटे का पाखर भी संभव नुह, it is not possible to any person or any scientist to remember each and individual names in a proper common language. So that we have decided to give a common name, that is the internationally accepted name, which the particular name or the scientific name that we can call, that is the scientific name that will be accepted all over the world. That's why they can make a one committee in the year of 1898, and they can name that committee is a International Commission on Zoological Nomenclature, and the members are called as the International Commission of Zoologists. Okay, they can decide or give a criteria. The commission formulated the following codes of nomenclature. ई जो आमर जो कमिटी तयारी करा गला बा ई जो कमिटीटा आमर जो बसिले बा जो मेंबर्स माने रहिले सेही मेंबर्स कोन कले द कमिशन फॉर्मुलेटेड से कोन कले गिव ए क्राइटेरिया गुटे देले तो हाउ इफ द criteria which will be fulfilled, then that name which will be suggested by the different scientists that will be accepted. तो कौन कहला the commission formulated the following code for the nomenclature. से किसी गोटे कोड ऑफ कंडक्ट बा किसी गोटे गाइडलाइन से गोटे दिया गला जो गाइडलाइन अनुसार से मानको रूल्स का हम पढ़ी दबा कौन कौन हेतिले
हाउ वी कैन गिव ए पर्टिकुलर नेम और से नेम टाको हमर जो इंटरनेशनल कमिशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से जो कमिटी टाको एक्सेप्टेड करिवो एवं से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेही नेम टा दिया हबो जोटा नेम टा कि हमर साइंटिफिक नेम बोली पाबो तो सेमानक अनुसार द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट रूल ऑफ द nomenclature is the name mentioned in the 10th edition of Systema Nature से कौन कले ए जो कमिशन कौन कले गुडे जो नेम टाको हमें दिया हबो दैट विल बी मेंशन बट जो विल बी सेटा कौन करा हबो स्टोरेज पर रखिबार अछि तो सेति पय बोली कौन हला गुडे बुक्स गुडे तयारी करा गला जार ना कौन बोली कहा गला Systema Nature तो व्हाट इज द बुक नेम इज नोन एज Systema Nature तो ए जो द नेम or the scientific name which will be given by the different zoologists which will be written in the 10th edition से जो बुक रो 10th edition आमे वर्तमान पाई परिबा in the 10th edition of the Systema Nature इ जो Systema Nature बोली गुडे बुक अछि जोठी कोन करछि हमरे विभिन्न प्रकार साइंटिफिक नेम मानन को नामकरण करा जायछि एवं सेठी से जाको लेखा होई कि रखाइछि each and every organism मानन का नेम को सेठी रखाइछि स्टोर कराइछि तो कोन गला द नेम्स mentioned in the each of name jack the scientific name jack of the different organisms will be mentioned in the 10th edition of Systema Nature is a Systema Nature name one book 10th edition re we can find all the names next the two genera so this is nothing but the genera is normally called as genus okay so the two genera or the genus of animals will bear same name two species of the genus will not bear the similar name कौन एठी बुझिलो गुडे एग्जांपल द्वारा म बुझौछि देखो फर्स्ट कौन कहला सेंटेंस ता द टू जेनेरा ऑफ एनिमल्स दुईटी जेनस will bear the same name rules कौन कहला two different animals of the we can study in our binomial nomenclature that two genus will be the two different animals genus will be bear माने नहीं पारे से रखी पारे गोटे नेम रखी पारे but two species of genus will not bear similar names but दुईटी species के बेले same name नहीं पारिबो नहीं I can give one example tiger and lion that I can already given in your binomial nomenclature so what is the name of the tiger the scientific name of the tiger is Panthera tigris okay the scientific name of the lion is Panthera leo तो देखो पहले एठु तुमको अर्थ होई जो कोन कहला you can understand easily in this example the देखो कोन कहला the two animals that is the tiger and the lion they have the two different animals होना नहीं बाघटा एवं सिंहटा दीटा कोन अछि दीटा डिफरेंट एनिमल्स अछि बट the genus will be same that is the Panthera and Panthera that means two organisms will bear the same genus टा तमरो सेम ही पारे because the criteria of the characteristic will be same because they are wild animals just again for your understanding for my example purpose तो ये कोन कहला two genus or the genera of the animals will bear the same name से माने दुईटी same name रखि परिबे genus ame देई परिबा just example Panthera and Panthera the two different organisms bears same genus name genus टा कोन रहला same रहला that is the Panthera but two species of genus देखो two species of genus दीटा species रहउची first one is the genus and next one is the species ई जो दुईटी जो species रहिला of a same genus that is the Panthera and Panthera दीटा genus same अछि but जो species टा रहिला the species will not bear similar name but species टा को हमें similar name देई परिबा नाही तो एठी कोन हला Panthera and Panthera the tiger and the lion both are coming under the genus Panthera but the species will be in the tiger that is the tigris and in case of lion it is leo okay तो ए जो देखि पाछो तो कोन कहला जे कोनोसी दुईटी ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विल bear the same genus ता सेमानकर सेम रही पारे but the species of the same genus will not bear the same name तो सेटा को हमें सेम नेम दे परिबा नाही this is the second rule of the commissions okay of the nomenclature the next rule is the name of the genus should be nominative
एई जो जेनस टाको आमे जो नामकरण दिया गला लाइक इन केस ऑफ टाइगर पांथेरा, इन केस ऑफ लायन also panthera, the genus is the panthera. In case of human, that is homo sapiens, homo is the genus. तो कौन कहला देखो पिले, the name of the genus ई जो आम जो नामकरण करिवा का जो genus टाको जो नामकरण करिवा, the name of the genus should be or must be a nominative singular. Nominative singular माने कौन? In a single word. Panthera single word, homo single word, Pisum sativum pea plant, that is also a single name. तो ये कौन कहला, the name of the genus should be nominative singular. सी जो नेम टाको हमें जोटा कि nominative, nominative माने कौन? निर्वाचित हेइथिबो आसुची मु पाठ को. Nominative माने कौन हेछि? Different countries, different scientists will propose a different name. बहुत गुड़ाए कंट्री रो बहुत गुड़ाए साइंटिस्ट माने कोन करथिबे, बहुत गुड़ाए जेनस बा नेम जा सजेस्ट करथिबे, सेति भितर आमे का गुडे नॉमिनेटिव करा हबो जोटा कि एग्जैक्टली तो का को आमे तो समस्त का नाम आमे दे परिबानी, गोटे नामकरण करिवार अछि तो का को नॉमिनेटिव करा हबो सेटर क्राइटेरिया एठी बुझाइ छै कोन कहला, द जेनस शुड बी नॉमिनेटिव सिंगुलर. नॉमिनेटिव करा हबो जे कोनोसी गोटे नेम को सिंगुलर आमे एक्सेप्टेड करिवा ए सिंगल वर्ड, दैट इज द सिंगल वर्ड. सेटा कोन हितबार अछि गोटे वर्ड हितबार अछि. जस्ट एग्जांपल जेमिति कि पांथेरा और होमो और पाइसम सेटिवम, मैग्निफेरा इंडिका, मैंगो हला मैग्निफेरा, तो गोटे वर्ड रो लेटरटा हितबार अछि, माने गोटे वर्ड से हितबार अछि जो जेनस टाको हमें नामकरण करिवा. तो कोन कहला ए सिंगल वर्ड, द स्पेसिफिक नेम शुड बी सिंगल और कंपाउंड. आउ जो तुम जो स्पेसिस नेम टा देइथिबो माने स्पेसिस नेम टा जो नामकरण करा हबो कोन कहला कंपाउंड. जदि सिंगल हेले सबटु बेटर, कंपाउंड मध्य वी कैन एक्सेप्टेड इट और द कमीशन विल बी एक्सेप्टेड देन. तो एटा गला हमर कोन द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ द कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर टा जोड़ा तमे लिखिबो जेनस रो से जो फर्स्ट लेटर टा, दैट इज इन केस ऑफ टाइगर, दैट इज द panthera, it will be start with the capital letter P. The first letter should be capital. First letter टा सब बळे कोन रहबो, the beginning with the capital letter. First letter टा सब बळे कोन रहला, capital letter रहला, and the species with a small letter. आउ जो species टा start हो, that is the tigris, it will be started with a small letter. सेटा कोन करिवा हबे, हमें small letter स्टार्ट करिवा. ओके, तो ये कोन कहला, the fourth point or the fourth criteria is the first letter of the genus. Genus of the first letter ta sobbale it should be capital letter, ta sobbale capital letter rahibo, and the species with a small letter. Ebong the species ta just next just start hobo, the next word start hobo, that will be in the small letter. Next kon कहला, new taxon is accepted. Okay, तो new taxon माने कोन, जे कोनोसी गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म को एई जो हमर जो अछन 1.5 to 1.7 मिलियंस ता छड़ा all over the scientists will analysis or they can research to the different animals. से माने वर्तमान बहुत गुडा एनिमल्स ऊपर रिसर्च मध्ये चाली छि. जदि गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म आसला, गोटे नुवा एनिमल्स गुडा आसला, माने न्यू प्लांट्स गुडा आसला, ताको हमें नामकरण करिया, वी कैन गिव ए नेम, दैट इज द नोमेनक्लेचर. सेटा मध्ये एक्सेप्टेड करा हबो, सी जो नेम टाको एक्सेप्टेड करा हबो, बट सेतिर मध्ये किछि हम रूल्स अछि. कोन कहला, द न्यू टैक्सन इज एक्सेप्टेड if जदि sufficient description for identification, सेही जो पर्टिकुलर नुआ ऑर्गेनिज्म टा बा नुआ प्लांट्स टा को हमें आइडेंटिफाई करिवा पई. आइडेंटिफाई माने कोन, गोटे ऑर्गेनिज्म हमें मनीष, तो मनीषर कुछ डेस्क्रिप्शन अछि, क्राइटेरिया अछि जे कथा कहि परियो, तार गोटे पर्टिकुलर ए भलिया स्ट्रक्चर देखा जे तार दुटा आखि अछि, दुटा कान अछि, गोटे पार्टी अछि जा कि से मूवमेंट कर पारे, बा जा कि तार जो प्रॉपर डेस्क्रिप्शन बा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन तार मस्ट दबार अछि. तो कोन कहला, द न्यू टैक्सन, देखो कोन कहला पहिले भल से बुझ, न्यू टैक्सन इज एक्सेप्टेड. गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म बा गोटे नुआ एनिमल्स बा गोटे नुआ प्लांट्स को हमें कोन करिया, गोटे टैक्सन टा को हमें एक्सेप्टेड करा जिवो, बट कोन कहला, जदी इफ सफिशिएंट डेस्क्रिप्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन, तार जो आइडेंटिफिकेशन रो प्रॉपर डेस्क्रिप्शन दरकार. डेस्क्रिप्शन माने कोन, गोटे ऑर्गेनिज्म को हमें चिन्हिबा पाई, आइडेंटिफिकेशन माने कोन, चिन्हिबा पाई बा जानिबा पाई तार जहा किछि तार डेस्क्रिप्शन हमको प्रॉपर्ली से सेठी माने जहा किछि से एनालिसिस करचंदी बा जहा किछि से रिसर्च करचंदी, टोटल डेस्क्रिप्शन दबा पड़िबो. इफ सफिशिएंट डेस्क्रिप्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आउरी मध्ये कंडीशन अछि, इज पब्लिश्ड इन ए
स्टैंडर्ड साइंटिफिक जर्नल। तो सी कौन कहला ये जो टोटल आइडेंटिफिकेशन पाई बोली जहाँ किसी डेस्क्रिप्शन दरकार पड़ला से जो टोटल डेस्क्रिप्शन टाको आमे कोठी पब्लिश करिवार अछि पब्लिश माने जेमिति कि जस्ट एग्जांपल गोटे एग्जांपल दोचे हमर विभिन्न प्रकार मैगजीन्स आछि मैगजीन्स जानते छोट छोट मैगजीन जो मैगजीन जोठी कोन कराई था डिफरेंट टॉपिक्स ऊपर हला नै सेठी जेमिति एठी मध्ये सेटा का जर्नल बोली कहै छै जेमिति इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जर्नल्स दैट मींस दैट जर्नल will be published all over the country जो जर्नल टा के हमर कोन हेतो all over the country पब्लिश हेतो जस्ट एग्जांपल मो गोटे दोची हमर जो विभिन्न प्रकार जे पेपर्स आस्ता होची मैगजीन्स जेंटा आस्ता होची सेटा कोन होची गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पई बा गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट पई बा गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री पई सेटा से कंट्री रे ही सेटा पब्लिश होची बट ये कोन कहला जो साइंटिस्ट टा की गोटे ऑर्गेनिज्म टा को एक्सेप्टेड करिवे बा टेक्सन टा को प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देबे से तार जो डिस्क्रिप्शन टा को गोटे इंटरनेशनली माने ऑल ओवर दी जति कंट्री अछि सेठी पब्लिश होथुबा गोटे जर्नल माने गोटे छोट बही गोटे बोली भाबो हला गोटे एग्जांपल हला गोटे बही गोटे हला गोटे मैगजीन रे बा गोटे इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जर्नल रे सेटा को पब्लिश करिथिबा पड़िबो एवं जर्नल एज फॉर दी तो आम मन इच्छा लिखिदे हेनी से जो जर्नल टाक कौन अच्छी तार डिस्क्रिप्शन एज फॉर दी रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय इंटरनेशनल कमिशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये जो इंटरनेशनल कमिशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये जो कमिशन टा रहिले बा ये जो कमिटी टा रहिले आंकर जो क्राइटेरिया अछि जो क्राइटेरिया हम वर्तमान पढुचे ये जो क्राइटेरिया अनुसार सेटा को से जो जर्नल रे पब्लिश करिथिबार अछि ओके तो कौन कहला the new taxon will be accepted if proper description for the identification and that will be published in a international journal हला as per the rules of हला नै से जो पब्लिश कराइतो सेटा रूल्स कोन कार रूल as per the rules of international commission on zoological nomenclature ई जो इंटरनेशनल कमिशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ई जो कमिटी रहिले एमानन को रूल अनुसार तार प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दबा को पड़िबे पढ़िजो बस ये जो जर्नल रे पब्लिश हेइछो एटा गला हमरा फिफ्थ क्राइटेरिया द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रायोरिटी भाबो पले थिंक इन द डिफरेंट कंट्रीज देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट विल बी रिसर्च अबाउट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म भाबो हमर इंडिया रे का लॉट ऑफ जूलॉजिस्ट अछंती बा लॉट ऑफ साइंटिस्ट अछंती लॉट ऑफ प्रोफेसर अछन जमाने कोन करछन बहुत गुडे से माने गुडे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऊपर रिसर्च करछन सेमिति हम इंडिया रे माने कर जो साइंटिस्ट गुडे रिसर्च करछन सेपड भाबा अमेरिका रे मध्ये गुडे रिसर्च गुडे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऊपर रिसर्च करछन आ गुडे कंट्री रे मध्ये सेमिति साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड तो डिफरेंट कंट्री रो विभिन्न प्रकार साइंटिस्ट माने गुटे ऑर्गेनिज्म ऊपर रिसर्च करछन हला ओके एग्जांपल म गुडे दोचे समस्त कोन कले से गोटे ऑर्गेनिज्म टाको विभिन्न प्रकार नेम्स देले से तो कार नाम टाको एमाने एक्सेप्ट करिवे तो सेति पय बोली कि एज पर लॉ ऑफ प्रायोरिटी सेमानक जो नियम अछि लॉ माने कोन नियम अछि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रायोरिटी द नेम प्रपोज्ड फर्स्ट जे नाम टाको फर्स्ट प्रपोज्ड करिवो माने कर भाबो इंडियन साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज्ड करचंदी आजिरो डेट रे से फर्स्ट प्रपोज कले तापर नेक्स्ट डेट रे और विभिन्न प्रकार कंट्री रो साइंटिस्ट माने सेटा को नेम टा को प्रपोज करछन तो समस्त नेम को देखा हबो बट एज पर द लॉ ऑफ प्रायोरिटी जेतु नियम अनुसार कोन जे फर्स्ट देछि तार फर्स्ट नेम टा को एक्सेप्टेड करा हबो जदी इफ द टोटल डिस्क्रिप्शन इज एज पर द इंटरनेशनल कमिशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एमानक जो कमिटी रो रूल एंड रेगुलेशन अनुसार जदी सब ठीक ठाक अछि ताहले जे फर्स्ट नेम को प्रपोज करिछि माने जे फर्स्ट सजेस्ट करिछि द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रायोरिटी द नेम प्रपोज्ड फर्स्ट जे नेम टा को फर्स्ट प्रपोज करछि इज एक्सेप्टेड से नेम टा को हमें फर्स्ट एक्सेप्टेड करिवा तो सर तो माने कर भाबो 10 टा साइंटिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट कंट्रीज हैव 10 डिफरेंट साइंटिस्ट विल प्रपोज द सेम organisms name to the different names 10 टा कंट्री रो 10 टा साइंटिस्ट कोन गले गोटे ऑर्गेनिज्म को 10 प्रकार नाम रे से माने सजेस्ट करचंदी तो जो कंट्री रो साइंटिस्ट के फर्स्ट प्रपोज करचंदी माने जे कि फर्स्ट जाईची हमरो इंटरनेशनल कमिशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पाको जोडा कि फर्स्ट जाईची तार प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अनुसार एमानक रूल्स एंड रेगुलेशन अनुसार से नेम टा को बा से कंट्री रो साइंटिस्ट को नाम टा को फर्स्ट कोन कराबो एक्सेप्टेड कराबो देन all the other names तो सर आउ जो बाकी 9 टा कंट्री जो साइंटिस्ट देथिले से माने कोन करिवे
आसुची ऑल दी नेम्स आर सिनोनिम्स आउ बाकी जो अदर साइंटिस्ट माने देइचंती बा आउ जो अदर कंट्री साइंटिस्ट माने जो नामकरण को देइचंती से जो नामटा को आमे एज अ सिनोनिम जिंदगी प्रति शब्द हला ने तार का आउट नेम बट एटा कोन करा जेटा फर्स्ट एक्सेप्टेड कराबो दैट विल बी कॉल्ड एज साइंटिफिक नेम we can study and there are another also some criteria is there okay let the next criteria is okay after the next rule for the nomenclature is the scientific names must be Latin or Latinized word that means the names which will be given to the organism जो नेम टा कि हमें ऑर्गेनिज्म को नामकरण करिबा द नेम्स मस्ट बी हला नै मस्ट बी कोन कहला लैटिन द लैंग्वेज शुड बी लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड वर्ड और जो वर्ड हमें जो दबा लाइक जिमिति हमें दले पांथरा टाइग्रिस पांथरा लियो मैग्निफेरा इंडिका होमो सपियंस द नेम्स और द वर्ड मस्ट बी लैटिन वर्ड और लैटिनाइज्ड वर्ड बिकॉज़ when the different languages will be started the Latin and the Greek language already started at that time so that name will be accepted as worldwide so that the word must be in the Latin or Latinized word the next criteria is the name must be written in ei jo namata ko ame jo lekhya jibo I can already told in your binomial nomenclature and trinomial nomenclature the names must be written in italic सेटा कोन हबो must be italic manner रे लिखियो पड़िबो italic with the name of author and year सेई जो नामटा the name should be written in the italic manner and after the name of the particular organism the author who can propose the name and in which year it should be mentioned in the Systema Nature book से जो Systema Nature book रे हमर कोन होइছে must be mention कराइছে I can give one example the name of the human homo sapiens इटा कार रे name human माने आमर हला नै human the scientific name of the human is homo sapiens is a homo sapiens that should be must be written in italic manner and after written the scientific name the scientist name must be written that is the Linus ei jo name ta amara scientist great scientist or the professor Linus eta propose karthile kebe in the year of 1758 so according to the nomenclature rule the name must be written in italic name ta hame italic manner lekhiba if we can write in the books or in the typing and if we can write handwritten jodi hame handwritten re lekhuche then the genus and the species should be written separately and give a separate underline them ame sita kon kariba separate underline kariba and after that it's the name of the scientist who can propose the scientific name which will be written and it also must be written in which year they can give the name to the particular organism so that after giving the name I can give one example that is the homo sapiens is the scientific name of the human will be given by the scientist Linus in the year of 1758 that this is the pattern it has a say pattern it has a say pranali जो the in which will be printed in your Systema Nature book जो तुम काढी देखियो 10th edition एई प्रकार लिखाइ छ तार द ह्यूमन रो साइंटिफिक नेम है होमो सापियंस केबे के देथिले लिनस देथिले केबे देथिले इन द ईयर ऑफ 1758 the next rule or the next criteria is it is customary to deposit the collection এই जो सैंपल टा की बा जो ऑर्गेनिज्म टा को जोटा कि हमें रिसर्च करिसे बा एनालिसिस करिके जोटा कि हमें नामकरण करिसे सी जो ऑर्गेनिज्म रो जो सैंपल टा द कस्टमरी डिपॉजिट द collection of new specimen in some museum for reference से जो स्पेसिमेन टाकू माने तमे देखिथियो हमर लैब रे मध्ये रखा जाय पार्टिकुलरली इ जो हमर डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स बर्ड्स और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी स्टोर्ड इन द म्यूजियम फॉर द रेफरेंस माने कोन नेक्स्ट हम जेतला आवश्यक पड़िबो सेही समय रे हमें ताकू देखिबा पई
हला नहीं सेटा को हमें कौन करबा व्हिच विल बी स्टोर्ड इन आवर म्यूजियम जे कोन गोटे म्यूजियम रे जो स्पेसिमेन टा दिया हबो से स्पेसिमेन रो टोटल डिस्क्रिप्शन लेखि की से जो सैंपल टा को हमें म्यूजियम रे स्टोर करी रखिबा तो सर व्हाट इज म्यूजियम इट इज द प्लेस or it is a organization or it is a one public building which will be helpful for the storing of the different organisms for our reference dead and decaying dead animals to preserve in a particular medium we can describe that is the museum what is the museum what is zoological park what is botanical garden we can I can told you but for your for the knowing of about the museum I can already told that it is a building it is a big building but it is a department of the college गोटे कॉलेज रो डिपार्टमेंट हे पारे जेंति हमर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट बॉटनी जूलॉजी डिपार्टमेंट से गोटे डिपार्टमेंट हे पारे गोटे लैब हे पारे गोटे यूनिवर्सिटी रो गोटे रूम हे पारे वेयर द डेड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड फॉर आवर रेफरेंस पर्पस हमर द रेफरेंस पर्पस माने हमें देखिबा जानिबा जो ऑर्गेनिज्म ता के ऑलरेडी द ऑर्गेनिज्म विल बी नॉट सीन इन द जनरल सो we can view in the museum हम से मानो म्यूजियम रे देख परिबा तो ई जो नामकरण जो ऑर्गेनिज्म करा हबो से मानो जो स्पेसिमेन ता हम कोन करबा गोटे म्यूजियम रे स्टोर करी रखिबा फॉर आवर रेफरेंस पर्पस टू नोइंग सम वर्ड्स आई कैन रिटन इन द ओडिया ओके तो कोन कहले हमर स्पेसिस माने ओडिया रे कोन कहा जाय जनरली जाति बोली कहा जाय हमर जो जाति ता जोडा बुझुची हमर सिनि जेनस ता को हम ओडिया रे हम कोन बोली कहते प्रजाति and the nominative the word will be come in your fourth and fifth point of the criteria of the nomenclature the nominative माने कर्ता कारक जे कि हमें कोन करा होची नॉमिनेट करा होची जे कि हमर हेड करा होची the nominative in odia it is called कर्ता कारक the synonym जोडा को आइतला first name the according to the law of priority the first name will be accepted and the other name will be given as a synonym तो synonym माने कोन कहला प्रतिशब्द माने सी जो जिमिति जस्ट एग्जांपल I can give one example जिमिति पवन वायु बोली हम कहते वायुटा कौन है तार प्रतिशब्द है तो सिमिति सिनोनिम मान है हमर प्रतिशब्द कस्टमरी मीन्स लौकिक तो कस्टमाइज आम जोड़ा करवा तो दिस इज ऑल अबाउट योर द डिफरेंट रूल्स व्हिच विल बी प्रपोज्ड बाय द जूलॉजिकल कमीशन इन द ईयर ऑफ 1898 that will this is the different terms and conditions or you can tell that this is the criteria that a organism will be given a particular name that is called we can commonly called as scientific name so this is all about your criteria or the rules that will be followed by the different scientists or the professor to give a particular new taxon this is all about your rules of nomenclature okay thank you